على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو وہ جو انعام کی میں نے تم پر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو جہان والوں پر یہ یہاں سے جو ہم نے رکوع نمبر 4 سے شروع کیا رکوع نمبر 14 تک سارے واقعات اللہ تعالیٰ اجمالاً بیان فرمائے گا. پچھلی آیت میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، اس سے بعد بھی یہ آیت ہے کہ 3 مرتبہ اس میں یہ آیت آتی ہے. بہت سارے احسانات کیے اور قوم نے، جس طرح کہ ہم نے کل کے لیسن کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تذکرہ تو ہم 10 رکوع کے اندر پڑھیں گے انشاءاللہ. جو اللہ تعالیٰ نے سب پہ کیے اس کا پتہ، جو اللہ نے خاص بنی اسرائیل پہ کیے اور جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا اس کا جواب دیا یا سلوک کیا پیغمبروں کے ساتھ، وہ بھی کچھ نہ کچھ کل ہم نے اس پہ بات کی تھی. اور دیکھو یہاں تک بس نہیں تھا جو ہم نے کل بات کی تھی، بلکہ انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو شہید بھی کر دیا تھا. زکریا علیہ السلام یا علیہ السلام کو شہید کرنے والے یہ قاتل ہیں. اس کے علاوہ ان کو بھی بہت تعداد میں شہید کیا جنہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا. اب دیکھو حدیث میں آتا کہ سب سے بدترین قسم کا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق وہ شخص ہے جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا جس بدقسمت نے نبی کو شہید کیا، کیونکہ رسولوں کی ذات کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. رسول اپنی طبعی موت اپنے بستر پر فوت ہوتے ہیں، جتنا مرضی قاتلانہ حملے کریں، زہر دیں، جادو کریں، لیکن رسولوں کو، اور کیونکہ رسول تو نبی ہو سکتا ہے اور نبی رسول نہیں ہو سکتا. رسول کا عہدہ کہ زیادہ، لیکن نبوت کے ناطے سارے برابر ہیں. رسول کا عہدہ یہ کہ صاحب کتاب ہوتا، صاحب شریعت ہوتا ہے. اس وقت آتا جب پہلی شریعت کا معاملہ بالکل ختم کر دیا جائے، کتاب مسخ کر دی جائے، تب نبی وہ ایک نئی کتاب یا اس کی تصحیح، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی شکل میں لے کے آئے تھے. تو رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے طبعی موت آتی ہے، اور ان لوگوں نے نبیوں کو شہید کرنے سے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا، اور جنہوں نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا ان کو بھی انہوں نے شہید کر دیا. اور سب سے بدترین یہ لوگ نکلے جو رسولوں کے قاتل ہیں یا جن کو رسولوں نے قتل کیا، وہی بدترین ہیں. پچھلے رکوع کے شروع سے بھی اللہ نے یہ آیت ارشاد فرمائی کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرتے، میں اور انعام کرتا. بہت ممکن تھا میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق، حدیث نہیں ملتی کہ اللہ تعالیٰ آخر زمان نبی بھی بنی اسرائیل میں ہی پیدا کر دیتے، لیکن جب انہوں نے اپنا ذمہ نہ نبھایا اللہ کو غصہ آیا. اللہ نے ان کے اندر بندر بھی بنائے، سور بھی بنائے، سب کچھ کیا جو انہوں نے کیا. داؤد علیہ السلام کی زبان کی بد دعا سے اللہ نے ان کو بندر سور بنایا تھا کہ یا اللہ یہ اس قابل ہے، شکلیں ہی بدل دے ان کی. تو بہرحال جب ان میں کو ہدایت کی رمز نہ پائی، اللہ کا پیغام آ گیا کہ اب ان میں کوئی ہدایت والا نہیں ہوگا، تب جا کے پیغمبروں نے بد دعا کی تھی، ورنہ پیغمبر بد دعا نہیں کرتے. سب کچھ کرنے کے بعد اس آیت میں پھر اللہ فرما رہے کہ میں نے بہت سارے انعامات کیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی ایک ایسے واقعات بیان کیے کہ ایسا شخص جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آتا ہے کہ مستجاب الدعوات تھا، بہت اس کی شان تھی، بڑا اس کا علم تھا، بڑے اس کے وظیفے تھے، لیکن دنیا کے مال کے لالچ میں آ گیا. جہاں کتے کی مثال آتی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے، نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے. ایسا لالچی انسان کو اللہ نے کتے کے برابر کر دیا. یہ لوگ ان کا معاملہ بن گیا کہ تھی تو بڑی شان والی قوم، لیکن اتنے گرے ہوئے کام کیے کہ میرے مالک کو غصہ آیا. میرے مالک نے نبوت ختم کر کے آخر زمان نبی بنو اسماعیل کی آل سے اللہ نے پیدا کر دیے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور بے شک فضیلت دی میں نے تم کو جہان والوں پر. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اور ڈر جاؤ قیامت کے دن سے، نہ کام آئے گا کوئی بھی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، یا نہ کام آئے گی کوئی بھی جان کسی جان کے کچھ بھی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ قبول کی جائے گی اس کی کوئی بھی
سفارش کا سارا اختیار میرے اللہ کے ہاتھ میں. جس کے متعلق اللہ چاہے گا، جتنے گناہ کے متعلق چاہے گا، جس کو اللہ آرڈر دے گا وہی سفارش کرا سکے گا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ بھی پڑ سکتے ہیں، معاوضہ بھی پڑ سکتی ہیں. دنیا میں انسان معاوضہ دے کے بہت ساری مصیبتوں سے اپنی جان چھڑا لیتا ہے، بدلے دے کے جان چھڑا لیتا ہے. وہ حدیث مد نظر رکھیں، سب سے کم درجے والا مشرک جو عذاب میں جہنم میں ہوگا، اس کو اللہ جہنم سے نکال کے نہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ پوچھے گا اب تیرے دل چاہتا ہے اس بات کو کہ دنیا و مافیا کا خزانہ تیرے پاس آ جائے اور تو اللہ کے راستے میں لٹا کر کے جہنم سے بچ جائے؟ کہے گا ہاں. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، اول تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہو بھی تو آج نہیں میں نے قبول کرنا، کیونکہ مرنے کے بعد تھوڑی صدقے اللہ قبول کرتا ہے. اس کے علاوہ اللہ فرمائے گا میں نے تجھ سے دنیا میں بہت چھوٹی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہیں کرنا. اب دیکھو مشرک لوگوں کو تو بڑا ہی کھپا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس آستانے پہ، کبھی کیا کرتے، کبھی کچھ کیا کرتے. ملتا وہی جو ان کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندے کو کہیں نہیں جانا پڑتا میرے سونے بچوں. وضو کر کے مسلے پہ آدھے، 4 آنسو بہا لے، اللہ سے تہ دل سے دعائیں مانگ لے، نہ بھی مراد پوری ہو تو کم از کم دل کو سکون مل جائے گا. اللہ کو منانا تو بڑا ہی سوکھا ہے، بڑا آسان. ہم یا اللہ کہیں، اللہ کہتے ہیں لبیک یا عبدی، بندیا میں تو حاضر ہی حاضر ہوں، میں تیری جان نکلنے تک تیرے ساتھ حاضر ہوں، تو مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. بندہ کہتا ہے اللہ ساری زندگی میں نے گناہ کیے. اللہ کہتے بندیا مجھے پرواہ کو نہیں، تو زمین بھر کے گناہوں کی میرے پاس لے کے آ کے سچے دل سے توبہ کر لے، میں اتنی ہی رحمتیں تیرے پاس لے کے آ جاؤں گا. بلکہ اگر تجھے کچھ موقع ملا اور تو نے اپنی آسان زندگی گزارنی شروع کر دی، میں تیرے سارے گناہوں کے دفتر دھو کے نیکیوں کے بھر دوں گا. یہ دنیا کا معاملہ قیامت کو کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، کوئی اپنے گناہوں کا معاوضہ نہیں دے سکے گا. نفسی کا عالم ہوگا. انسان سارے جہان کو جہنم میں ڈالنے کی دعا کر کے اپنی جان بچانے کا اللہ سے مطالبہ کرے گا. آج وقت ہے جان بچانے کا، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانے کا. اور ڈر جاؤ قیامت، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے اللہ نے اس آیت کے اندر بھی یہی کچھ فرمایا. اور یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اور آیت الکرسی تیسرے بارے میں، آیت الکرسی پہلے والی آیت میں بھی اللہ یہی فرماتے کہ آج خرچ کر لو، کل قیامت والے دن تم کچھ بھی خرچ نہیں کر سکو گے. کیونکہ ان لوگوں نے کہا تھا ہم اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں، اللہ کے بڑے پیارے، تبھی تو اللہ نے 4000 پیغمبر پیدا کر دیے ہماری آل میں، ہماری امت میں. تو انہوں نے کہا نحن ابناء اللہ، نعوذ باللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، ہم اس کے بڑے محبوب ہیں. اللہ نے کہا کوئی بھی کسی کی جو ہے نا نسبت کام نہیں آئے گی. اگر محبوب کام آتے تو میرے پاک پیغمبر کو اپنے چچا سے بڑی محبت تھی، آپ کے چچا کو آپ سے بڑی محبت تھی. محبت کام نہیں آئی، یہاں تو عمل کام آنے ہیں. آپ نے ہر خاندان کے ایک ایک فرد کو، اپنی بیٹی کو، اپنی پھپھو جان کو، سب کو کہہ دیا تھا کہ دنیا میں مجھ سے جو کچھ لینا ہے وہ لے لو. انسانی ہمدردی کے ناطے، صلہ رحمی کے ناطے، قیامت والے دن میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، تمہارے اعمال تمہارے کام آئیں گے. جب آقا علیہ السلام نے جواب دے دیا، جس نے سارے جہان کی سفارش کرانے کے لیے اللہ کے پاس سر سجدے میں رکھ دینا، تو میرے بیٹا ہم کس طرح سفارش کروا سکتے ہیں؟ اگر نسبت کام آتی ہوتی، نوح علیہ السلام کا اپنا ہی بیٹا تھا نا، لیکن اس کے عمل غیر صالح تھے، وہ اس عذاب میں غرق ہو گیا. نوح علیہ السلام کی بیٹی، لوط علیہ السلام کی بیٹی، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، یہ بھی جہنم میں چلی گئی تھی. جب بخار ہوتا ہے پھر طبیعت ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو میرے بیٹا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. یہی ہے کہ جب ہم کفارے کی دعا پڑھ لیتی ہیں، کوئی زبان سے اس طرح کا لفظ نکل جائے میرے اللہ معاف کرنے پہ قادر ہے، تو یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرتی ہیں، نہ قیامت کو کوئی مدد کرنے والا ہوگا. ہر ایک کہے گا کہ مجھے نیکی چاہیے، تو مجھے دے جا. کوئی نہیں کہے گا لے گئے میری نیکی لے جا، اور تجھے اللہ بخش دے. اپنے اپنے نیکیاں کام آنی ہے. میرے پیارے بچوں، کبھی دائمہ سلام پھیر کے تینوں کلمے کہتی ہو نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو سلام پھیرنے کے بعد خوشی ہوتی ہے. 30 نیکیاں ادھر مل گئیں، 30 نیکیاں ادھر مل گئیں، ایک سلام پر 60 نیکیاں مل گئیں. کتنی سلامیں پھیری، نفل پڑھے، فرض پڑھے، سنتے پڑھی. اللہ آپ کو توفیق دے. تو بیٹا یہ وقت ہے نیکیاں اکٹھیاں کرنے کا. بچے کو کپڑے پہنانے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، ٹوٹلی کام جو دنیا کا آپ نے کرنا، سنت کے مطابق کرنا ہے. اس سے کیا ہمیں نیکی ملتی ہے، اس سے ہم گناہوں سے بچتی ہیں.
वत्तकू यौमन ला तजज़ी, और डर जाओ क़यामत के दिन से ना काम आएगा कोई नफ्स अन नफ्सी शैया, किसी नफ्स के कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और ना कबूल की जाएगी उससे कोई भी सिफारिश या उसकी कोई सिफारिश, वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और ना पकड़ा जाएगा उससे कोई भी मुआवजा, या ना लिया जाएगा उससे कोई भी बदला, वला हुम युनसरून, और ना ही वो मदद दिए जाएंगे। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आले फिरौना, और जब नजात दी हमने तुमको फिरौन की आल से, यसूमुनकुम सूअल अज़ाबी, पहुंचाते थे वो तुमको या चखाते थे वो तुमको बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम, ज़बा करते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना निसाअकुम, और जिंदा छोड़ते थे तुम्हारी बेटियों को, व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी, सबसे बड़ा मेरे अल्लाह ने एहसान फरमाया। फिरौन मिस्र का बादशाह था, इसकी फिरौनियत और हम याद रखते हैं, इस बात को याद होना भी चाहिए कि फिरौन मिस्र के बादशाह का नाम नहीं था बल्कि लक़ब था। जितने मिस्र के बादशाह होते इनका नाम और अपना जो भी होता है इनका लक़ब फिरौन होता। जैसे हबशा के बादशाह का जो लक़ब है वो नजाशी था, और वैसे इसका नाम असहमा था। इस तरह कैसो किसरा जो थे ना, यानी वो इनका अपना नाम, जैसे वो कहते हैं रूम के बादशाह का नाम जो कैसर था, इसका अपना नाम हिरकल था, और ईरान के बादशाह का नाम जो था परवेज था, और लक़ब क्या था? किसरा, लक़ब किसरा। हाँ वो कैसर था, ये किसरा था, छोटे काफ के साथ, वो बड़े काफ के साथ। तो ये उनके लक़ब हुआ करते थे। इस तरह यमन के बादशाह का नाम तुब्बा था, ये इनके लक़ब हुआ करते थे। लेकिन जिस दौर में मूसा अलैहिस्सलाम आए उस दौर की बात करते हैं। उस दौर में जो फिरौन था ना मिस्र का बादशाह था, इसका नाम रा मसीस था। और तफसीरों में आता वल्लाहु आलम कि इसको को ख्वाब रा डाल के ना आइन मीम यासीन कटी रा मसीस इसका नाम था। क्योंकि उसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम का दूसरा दौर पैगम्बरी का आया उस वक्त मेरा पता था। तो बहरहाल ये है फिरौन मिस्र का बादशाह, लेकिन इसको को ख्वाब आई, कुछ हुआ, रवायतों में तो यही आता है। इसने ताबीर पूछी, ख्वाब ये आई थी। बाज़ ने ये कहा है कि एक सितारा देखा जो बढ़ते बढ़ते बढ़ गया और तमाम सितारों पे गालिब आ गया। और बाज़ ने कहा कि इस तरह देखा कि एक आग निकली है जो सिबतियों को यानी बनी इसराइलियों को कुछ नहीं कहती और फिरौनियों को खाई जा रही है। यानी कोई भी ख्वाब आई। जब इसकी ताबीर पूछी तो ताबीर बताने वालों ने कहा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जिसके हाथ पर तेरी बादशाही खत्म हो जाएगी और तुम तमाम के तमाम खत्म हो जाओगे। उसने इस बात को ना सोचा कि अगर मेरी ख्वाब नहीं, मुझे वहम है, फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरी ख्वाब वाकई है तो मेरी तदबीर अल्लाह, अपना जो मेरी तदबीर है अल्लाह की तकदीर के आगे कुछ काम नहीं कर सकती। उसने कहा यह कौन सा मुश्किल काम है। उसने बनी इसराइलियों के बच्चे ज़बह करवाने शुरू कर दिए। उसने पूरे मुल्क में अन्नाएं दाइयाँ जो होती हैं उनको इनाम कराम देने का वादा किया कि जिस भी बनी इसराइली औरत के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उन्हें बता देना, फौरी जाके इनके जल्लाद जाते इस बच्चे को ज़बह कर देते, बच्चे को कत्ल कर देते। बड़ी परेशानी का आलम था। देखो कुदरती बात है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो माँ थी, बाज़ रिवायतों में आता कि जब काफ़ी अरसा इसरा गुजरा ना तो लोगों ने कहा इनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। ज़ाहिर अगर मर्द होगा तो शादी होगी, आगे होंगे, सिर्फ 4 औरतें रह जाएंगी, जितनी भी हैं फिर मर जाएंगी, मामला खत्म हो जाएगा। तो बाज़ रिवायतों में आता वल्लाहु आलम, इसने 1 साल के बच्चों को छोड़ना शुरू कर दिया। अब जो 1 साल के बच्चों को छोड़ा उसमें मूसा अलैहिस्सलाम के जो बड़े भाई वह हारून पैदा हुए, 2 साल बड़े थे, और मूसा अलैहिस्सलाम ज़बह होने वाले साल पैदा हो गए। अब अल्लाह की हिकमतें इंशाल्लाह हम पढ़ती जाएंगी। यहाँ थोड़ी सी बात करनी है हमने कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं भी रब नहीं जहान वालों का, मैं ये अपना पैगंबर, मैं अपना बंदा जिसकी खातर तूने लातादाद बच्चे ज़बह करवा दिए, तेरी गोद में न पलवाऊं, तेरा जूता तेरे मुंह के ऊपर लगेगा। तो मेरे अल्लाह की ये कुदरत थी, कोई शक नहीं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपने भाई को बाप की नजरों से पीछे किया कि खालिस तवज्जो हमारी तरफ हो जाएगी, पहले से भी गई। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतल्लक कि हमें कभी इसको को फोकियत ना मिले, मेरे मालिक ने वो उनका पहला जीना साबित हुआ, उनको उठाया और उठा के मेरे मालिक ने जो भी उन पर हालात गुजरे आखिरकार मिस्र का बादशाह बना दिया। ये अल्लाह ताला इसमें बयान करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एहसान था कि जब फिरौन गर्क हुआ, उनकी जान छूटी और अल्लाह ताला ने जो उनसे किए हुए वादे थे अल्लाह ने सबको उनको नेमतें दी, सबको से जब जब जिस तरह नाफरमानी करते गए ऐसे ऐसे अल्लाह ने सजाएं देते गए। और जैसे ताउन की बीमारी भी इन पर आई वो हम इंशाल्लाह वाकया पढ़ेंगे आगे चल के।
वैज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन, और जब नजात दी हमने तुमको मिन आलि फिरौन, फिरौन की आल से, यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी, पहुंचाते थे वो तुमको बुरा अजाब, युज़ब्बिहूना अबनाकुम, ज़बा करते थे तुम्हारे बेटों को, व यस्तहयूना निसाकुम, और जिंदा छोड़ते तुम्हारी बेटियों को, व फी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी। अगर लेसन इतना ही रहने दो, कुछ फरिश्तों के मुतल्लक मेरा उधार चलता आ रहा है कि फरिश्तों की थोड़ी सी तफसील मैंने आपके सामने रखनी थी, क्योंकि हमने हाल ही में अपने लेसन के अंदर फरिश्तों का और जिन्नों का वाक़या पढ़ा। लेकिन आज तो मैं आपके सामने फरिश्तों की थोड़ी सी तफसील जो कि मेरी यादाश्त में या मेरे इल्म में है, मैं बताऊंगी कि फरिश्ते क्या चीज़ हैं, क्योंकि फरिश्तों की तादाद के मुतल्लक तो हम बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती कि अल्लाह के फरिश्ते किस तादाद में हैं, जबकि आका अलैहिस्सलाम ने इस बात पे बात ख़त्म कर दी कि मैंने मेराज की रात बैतुल मामूर में देखा कि 70,000 का लश्कर एक मरतबा इबादत करने के लिए दाखिल हुआ और दोबारा उनकी फिर क़यामत तक बारी नहीं आएगी। लेकिन जितना कुरान और हदीसे में थोड़ा बहुत इल्म मिलता है कि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने मुकर्रब भी बनाया, और फरिश्तों की ला तादाद अल्लाह ने बनाई। सबसे पहले हम मुकर्रबीन फरिश्तों की बात करते हैं कि कुछ फरिश्ते अल्लाह के मुकर्रबीन में से हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ है। अब इस वक्त वो 4 हैं। अब उन फरिश्तों की कैफियत के बारे में जो ज़ईफ हदीसें आती हैं हमने उनको नहीं जाना, क्योंकि अल्लाह खूब जानता है। हम तो फरिश्तों की शक्ल को भी नहीं जानते, अल्लाह जानता है कि फरिश्तों की शक्ल असल सूरत क्या है, वो अल्लाह खूब जानता है। मेरी प्यारी बेटियों, असल शक्ल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को 2 बार देखा था, तो आपकी कंडीशन क्या हो गई थी? आपने देखा, आप अपना वही के मुंतजिर थे, पहली वही के बाद कुछ वही रुकी रही कुछ देर तक, कि अचानक आप परेशानी में निकले, देखा तो आसमान से आवाज आई। जब नजर उठा के देखा तो आसमान से जमीन तक, दाएं से बाएं तक जितना खला था वो सारे का सारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जिस्म से पुर था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक कुर्सी पर तशरीफ फरमा थे और 600 परों के साथ उन्होंने अपना दीदार कराया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। 600 परों के साथ वसल्लम को घबराहट महसूस हुई, सर्दी लगनी शुरू हो गई, ज़म्मिलूनी का पैगाम लेके फिर अपने घर चले गए। और दूसरी मर्तबा पाक पैगम्बर ने मेराज की रात जिब्राइल अलैहिस्सलाम को असल शक्ल में देखा था। ज़मीन से जो कुछ भी सैरें कराई, आसमान की तरफ लेके चले गए, जैसे भी लेके गए। सोने की सीढ़ी थी, लिफ्ट थी, क्या था अल्लाह को खूब पता है। लेकिन जब सारा मामला करके सिदरातुल मुंतहा जो हद थी ज़मीन वालों की, उसके आगे जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं जा सकते थे, वहां जाके असल शक्ल में नजर आए। तो मुकर्रबीन फरिश्ते की बात कर रही हूँ कि मुकर्रबीन फरिश्ते 4 हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को अपने ऊपर उठाया हुआ है। और जब क़यामत को अल्लाह ताला ज़मीन पे जलवा अफरोज होंगे, ज़मीन वालों का हिसाब किताब करने के लिए, पाक पैगंबर की सिफारिश पर उस वक्त 8 फरिश्तों ने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ होगा। इन सब चीज़ों की कैफियत अल्लाह ताला जानता है। उसके बाद अल्लाह ताला के मुकर्रबीन फरिश्तों में से मुकर्रब फरिश्ते हैं जो मुस्तकिल हर वक्त अल्लाह ताला के अर्श के चारों तरफ अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। बेशक अल्लाह अपनी ज़ात पे महमूद है, लेकिन मुकर्रबीन फरिश्ते लातादाद अल्लाह ताला के अर्श के चारों तरफ अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं। उसके बाद कुछ फरिश्ते जो हैं ये फरिश्तों के सरदार हैं, इनको भी मुकर्रबीन फरिश्ते ही कहा जाता है। जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम तमाम पैगंबरों पर वही लाने वाले, और ये बहुत बड़ी जमात के सरदार है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। ये मुकर्रबीन फरिश्तों के अंदर भी कुछ सरदार फरिश्ते हैं जिनमें सरे फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं और बहुत सारे फरिश्तों के सरदार हैं। फिर उसके बाद जो है वो है मीकाईल अलैहिस्सलाम। मीकाईल अलैहिस्सलाम जो है ना, ये भी बहुत बड़ी जमात के सरदार है, और ये बारिश और बादलों के सिलसिले में अल्लाह ने इनको ड्यूटी दी हुई है। और थोड़ी सी यहाँ रुक के ये बात समझे कि जो ड्यूटी अल्लाह ने किसी फरिश्ते को दी वो उसी ड्यूटी को पूरा कर सकता है, किसी दूसरी ड्यूटी पे फायज नहीं हो सकता। मलकल मौत फरिश्ता सारे जहान की जान तो निकाल सकता है, लेकिन बारिश के फरिश्तों का या बादलों का निजाम नहीं संभाल सकता। इस तरह बाकी फरिश्ते सब कुछ तो कर सकते हैं कि चींटी की जान भी नहीं निकाल सकते। जो ड्यूटी अल्लाह ने दी उस पर वो फाइज हैं। तो जो मीकाईल फरिश्ते हैं ये तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। कितने फरिश्ते वो अल्लाह खूब जानता है। उसकी जमात के सरदार, जैसे हम कहते हैं कि ये इंतजामिया में से हैं, ये हमारी प्रिंसिपल है, या हमारा सरदार है, या ये हमारा समझो कि लश्कर का अमीर, जो भी हम समझ लें, तो इजराइल अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के अमीर हैं और सरदार हैं। उसके बाद जो है इजराइल, क्योंकि हमारी अपनी ज़बान में इजराइल कहा जाता है। वैसे मैंने किसी हदीस के अंदर नहीं पढ़ा, कुरान पाक में अल्लाह कहते हैं कि
कुल यतवफ़ा कुल मलकुल मौतिल्लज़ी वुकिला बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। मैंने तुम्हारे लिए मलकल मौत फरिश्ता मुकर्रर किया, तुम्हारी रूह को निकालता और तुम सारे अल्लाह के पास पहुंच जाओगे। मलकल मौत ही हम कहती है, या इजराइल समझ लो, ये भी अपनी पूरी जमात के सरदार हैं। क्योंकि हदीस में आता है जब नेक बंदे की जान के निकलने का वक्त आता है तो तमाम के तमाम जहां तक उस फौत होने वाले की नजर है उसको फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आते हैं और वो जन्नत के अंदर से आते हैं लातादाद जहां तक उसकी नजर है। और जब अल्लाह ना करे काफिर की मौत का वक्त आता, जान निकालने वाले ये एक ही फरिश्ते हैं मलकल मौत। वो जब बिल्कुल टाइम होता तब आके उसके सराहने बैठते हैं, उसकी जान निकालते हैं। अल्लाह सोनिया हमारे नज़ा के वक्त की तकलीफों और शिद्दत से हमें बचा के रखना, मौत की बेहोशियों और शिद्दत से बचा के रखना। अल्लाह हमारे ऊपर अपना करम फरमाना। मेरे बेटा मैं तो कहती हूँ अल्लाह सोनिया दुनिया के डॉक्टर बेहोश करके दिल का बाईपास कर लेते हैं, मरीज को पता ही नहीं चलता। जब मुझे ये मेरा बड़ा ऑपरेट हुआ था, ये बहुत बड़ा ऑपरेट होता, साथ मुझे हार्ट का मसला था, लेकिन चंद दिन बाद मुझे जब होश आई तो मैं ना मुझे होश नहीं आती थी, यानी मेरा हार्ट का मसला था ना। 5-6 दिन गालिबन इमरजेंसी में रही। तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, मुझे कोई पता नहीं किस वक्त मेरा ऑपरेट हुआ है, क्या हुआ कुछ नहीं है। तो ये मैं कहती अल्लाह सुने, अगर दुनिया के डॉक्टर ऐसा करते, अल्लाह सुने तेरे पास भी कुदरत है, अल्लाह मुझे तकलीफ ना देना। अल्लाह तुझे मालूम है मैंने कितनी कितनी अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी बीमारियां देखी, अल्लाह मेरे गुनाह माफ करना, कोई मेरी नेकी कबूल करके अल्लाह हम सब मुसलमानों की जान के निकलने का वक्त आसान करना और ईमान की सलामतियां देना। ये इजराइल जो है, यह मलकल मौत फरिश्ता है, ये भी तमाम फरिश्तों का सरदार, जहन्नम के फरिश्तों का भी और जन्नत के फरिश्तों का भी। जान निकालने वाला फरिश्ता एक है, लेकिन इसकी जमात अलग है। काफरों की जान को निकालने के लिए जहन्नम से जमात लेके आता है, यानी जहन्नम से, ये नहीं कि फरिश्ते जहन्नम में सड़ते हैं, जहन्नमी फरिश्तों की जमात लेके आता है। और मोमिन की जान निकालने के लिए जन्नती फरिश्तों की जमात लेके आता है। मलकल मौत एक है। इजराइल जो है ना, ये मैं कहती कि हमारी जबान पे कि इजराइल फरिश्ता, लेकिन मुझे कुरान और हदीस से इजराइल नाम नहीं मिला। ये हमारी तफसीरों में भी लिखा होता है, लेकिन हदीस के अंदर को साफ वाज़िह नहीं हदीस आती कि जो फरिश्ता जान निकालता उसका नाम इजराइल है। अल्लाह ने उसका नाम मलकल मौत लिया है। मलकल मैंने फरिश्ता नहीं, मौत का फरिश्ता। मौत का फरिश्ता एक है, तमाम जहान की जान निकालने वाला, लेकिन वो फरिश्तों की जमात अलग अलग है। जन्नतियों के लिए जन्नत के फरिश्ते और जहन्नमियों के लिए जहन्नम के फरिश्ते, जहन्नम के दारोगे हैं। और मेरा बेटा इसके अलावा अगर हम फरिश्तों को देखेंगे तो जमीन और आसमान का सारा खला फरिश्तों से भरपूर है। क्योंकि हमने कुरान पाक के अंदर पढ़ा, जैसे जाली तनी होती है ना, यानी जालीदार आसमान की फिजा जालीदार बन चुकी है। कुछ फरिश्ते आ रहे हैं, कुछ फरिश्ते आ रहे हैं। जमीन में कितने बंदे हैं जिनके ये किरामन कातिबीन जो हैं वो आ जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है। जमीन और आसमान के फरिश्ते, इसके बारे में कोई पता नहीं। इतनी लातादाद है उनकी, इतनी तादाद कसीर है कि जमीन और आसमान का जो खलाक है जालीदार बन चुका। कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं। उसके बाद जमीन की तरफ आके देखें तो हमारे साथ फरिश्ते दो तो अल्लाह ताला बच्चे की पैदाइश के साथ ही लगा देता है, मुकर्रर कर देता है। लेकिन यहाँ भी रुके एक बात को जाने कि आजकल कहते हैं कि जिस बच्चे पे लिबास तस्वीर वाला है ना, देखो आप कहते हैं मिलता ही नहीं। मैंने अब दो, एक मुझे अल्लाह ने पोता दी, एक पोती दी, मैंने सारे कपड़े 12 सूट मैंने बनाए अपने बिलाल के बच्चे के। कुछ घर के भी थे लेकिन जो रेडीमेड थे बिल्कुल सादे। और बच्चे को कहा कि बेटा दुनिया जहां से जहां मर्जी लेके मुझे सादे सूट चाहिए। अभी माशाल्लाह खरीद रहा, जाता मेरे मेहमान को भी खुशी दिखाए तो मिलते हैं, जरा तलाश करने पड़ते हैं। अगर उसमें डिजाइनिंग अच्छी तो क्या हुआ। बच्चे पे बुत वाला कपड़ा ना पहनाए, क्योंकि जब ये उसके ऊपर जो होता है, समझो कि हमारा कंबल, उस पर भी फोटो है, उसकी टोपी पे यहाँ बालू बना है, उसके सीने पे यहाँ बना है। अल्लाह मैं क्या करूं। मेरे बेटा ये मौलवी साहब ने ऐलान किया था कि बच्चों को ना लेके आया करो मस्जिद में जिन्होंने इस तरह के बुत वाले कपड़े पहने। हमारी नमाज भी नहीं थी। मैंने अल्लाह से थोड़ा शुक्र है, कोई तो बात हुई अच्छी। तो बेटा ये है कि अगर हम तलाश करें तो मिल सकते हैं, अगर ना मिले, आपने ले लिया, आप उसकी शक्ल को मिटाने के लिए उस पर कोई और फूल बना दें, उसकी आंखों को और नोज को, हर चीज को मिटा दें, वो फूल की शक्ल में बन जाएगा। और वो फूल में तो मैं अभी दिखा सकती हूँ, मेरा गुस्सा हुआ था, कारी साहब कंबल ले आ गया, जरा एहतियात में कमजोरी कर लेते हैं। मैंने मेहनत तो की और मैंने कढ़ाई करके उनको इतने प्यारे फूल बना दिया कि वो बुत का नाम और निशान खत्म हो गया। ये भी चीज जायज है। तो मेरे बेटा बात ही हो रही थी जिस घर में, बाकी तो है ना, उसकी नाक तो है, उसके सारे निशान होते, टांगे होती है, हैंडल तो सब।
सारा मुंह ना हो तो फिर आपने इस तरह कपड़ा फाड़ दिया कि उसका मुंह अलग कर दो, टांगे उसकी अलग कर दो। देखिए बात ये कर रही थी कि जिन कपड़ों पे बच्चे के कपड़ों पे बुत बने हुए हैं, बच्चे से वो रहमत वाले फरिश्ते, जो बचाव वाले फरिश्ते दो होते, कहती कि बचने के कोई आसार नहीं थे, अल्लाह ने बचाया। हमें भी अल्लाह बचाता, वो फरिश्ते जब तक हमारी जान निकलने का टाइम नहीं होता ना, वो हमारी पहरादारी करते हैं। अल्लाह ने दो मुकर्रर कर दिया, अल्लाह ने कहा चार तेरे साथ हैं, एक तेरे आगे एक तेरे पीछे, अल्लाह का बॉडीगार्ड, एक दाएं नेकियां लिखने वाला, एक बाएं, इसको तो फारग करना है, इसको तो कुछ नहीं लिखने देना, फिर बात बनेगी हमारी, मेरे बेटो यही लिखता जाए, ये फारग होकर बैठा रहे। लेकिन बाद चार फरिश्ते हमारे साथ हर वक्त मौजूद हैं। इसके चार फरिश्ते हमारे पास मौजूद हैं आगे पीछे, और ये किरामन कातिबीन लिखने वाले हर वक्त हमारे साथ हैं। और इसके अलावा फरिश्तों के मामलात ये देखिए कि फरिश्ते जैसे पहले भी हमने लेसन के अंदर बात की थी कि जिन भी शक्ल बदल लेते, फरिश्ते भी शक्ल बदल लेते। फरिश्ते शक्ल इंसानी बदलते हैं, इंसान की शक्ल में आके पैगाम दे जाते हैं, बाद ख्वाब के अंदर भी आते हैं। और बड़ी सही का आदमी था जिसको कहा कि तो अल्लाह की रजा के लिए जा रहा है, अल्लाह तेरे साथ राजी है। फरिश्ते मरियम अलैहिस्सलाम के पास भी इंसानी शक्ल में आते थे, इनकी भी लातादाद, इनकी तादाद भी हम नहीं गिन सकते। इसके अलावा भी अल्लाह ताला की रहमत के फरिश्ते इतने ज्यादा हैं। मेरे बेटा अगर थोड़ी सी बात यहाँ करो, आका अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे, एक पीछे आया, उसका सांस फूला हुआ था, सांस फूला हुआ था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पोजीशन में थे, समी अल्लाह, उसने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, फिर हाथ नीचे करना, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आपने नमाज खत्म की, फरमाया किसने ऊंची कलिमात कहे थे, वो डर गया कि पता नहीं मुझसे गलती हुई है। आपने फिर पूछा, फिर सारे खामोश हैं। तीसरी बार फरमाया उसने अच्छा कलमा कहा था, मेरे पास तो आए, मेरी बात तो सुने। जब आपके पास आया, फरमाया 30 या 32 फरिश्ते मैंने आसमान से देखे उतरते हुए, ये सारे जल्दी कर रहे थे, तेरे इस कलमे को अल्लाह के पास लेके जाने की जल्दी कर रहे थे। और लिखने के मतलब भी आता है, साबित हुआ कि किरामन कातिबीन के भी अलावा कुछ फरिश्ते हैं जो हमारे लिखने वाले या अल्लाह के पास हमारे हमदो सना को पहुंचाने वाले हैं। इसके अलावा भी फरिश्तों के मतलब बहुत बात होती है, यानी बहुत सारे फरिश्ते हैं जिनके मतलब हमारी मालूमात नहीं है, तो ये फरिश्तों की मालूमात है। और जिन्नों की मालूमात इतनी है कि मैंने कहा था कि नार और नूर, फरिश्ते नूर से हैं, नूर में भी रोशनी है और नार में भी रोशनी है। नूर की रोशनी ठंडी है और नार की रोशनी शिद्दत वाली है, हिद्दत वाली है। नार से अल्लाह ने जिन्नों को पैदा किया, नूर से अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया। और जो फरिश्ते हैं ना, ये अपनी जात के अंदर बेअख्तियार हैं, अल्लाह की नाफरमानी कर ही नहीं सकते। अल्लाह ने नाफरमानी का मादा ही इनमें नहीं पैदा किया। अल्लाह कहते मैं चाहता तो इंसानों को भी मैं फरिश्तों के बराबर बना लेता, लेकिन हम अपनी जबान में कहते फला इतना नेक है कि गोया के चलता फिरता फरिश्ता, हमने कभी भी इसको नाफरमानी करते नहीं देखा। लेकिन अब फरिश्ते भी शक्ल बदल लेते हैं और जिन भी बदल लेते हैं। लेकिन जिन्नों को और इंसानों को, क्योंकि कुछ आत्में जिन्नों की इंसानों के साथ मिलती हैं और कुछ फरिश्तों के साथ मिलती हैं, लेकिन जिन्नों की आत्में इंसानों के साथ है कि जिन्नों को इंसानों को दोनों को अल्लाह ने बाख्तियार मखलूक बनाया। फरिश्ते बेअख्तियार हैं और इंसान और जिन बाख्तियार हैं। इन दोनों को अल्लाह ने अकल, समझ, इरादा, अख्तियार दे के पैदा किया। अब ये अल्लाह ने आजमाना, इन जिन्नों ने या इंसानों ने इन सारी सलाहियतों को अगर अल्लाह की ताबेदारी में इस्तेमाल किया तो ये बंदा बख्शा जाएगा, जन्नती हो गया। अगर अपनी मर्जी के मुताबिक, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, आपने ये जुमला सुना है कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, इसके मतलब कितनी कितनी आवाजें उठी और कैसी जलील औरतों ने ये बात कही, क्योंकि ना मेरा जिस्म अपना है और ना इस पर मेरी मर्जी अपनी चलेगी। जिस मालिक ने मेरा जिस्म पैदा किया उस खालिक की मर्जी चलेगी, इंशाल्लाह मैं अपनी मर्जी नहीं कर सकती। बड़े बड़े नारे लगाए, बेनजीर की बातें मुझे खुद याद हैं, जो कुछ पोस्टर लेके उसकी जमात, उसकी औरतें नारे लगाती थी। ये इंसान का मामला बन चुका, ये आदत जिन्नों की इंसानों की इकट्ठी है कि ये अपने अख्तियार को, अपनी अकल समझ को, अपने इरादे को चाहे तो अच्छा इस्तेमाल कर ले, चाहे तो बुरा। अल्लाह कहते ला इकराह फी दीन, मजबूरी कोई नहीं। जब इंसान दीनदार हो जाएगा, कलमा पड़ेगा, तब वो दीन के दायरे के अंदर आ जाएगा, तब उसके टखने बांधे जाएंगे, उसके एक एक उज़व को बांधा जाएगा कि जबान भी अल्लाह की मर्जी के खिलाफ नहीं बोल सकती, हाथ भी नहीं चल सकते, पाँव भी नहीं चल सकते, मेरी प्यारी बेटी आंखें भी नहीं देख सकती। अल्लाह जानता कि आजकल की ये जो खुलम खुली बात है, मुझे इतनी इसमें जिल्लत महसूस होती है। हमारी बहू बेटियां हैं जो आंखें नंगी करके दिखाती हैं, लेकिन जब अमीना की शादी, आप जानती हैं वो सबसे छोटी है, मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, बड़ी तो अल्लाह की जात है ना। लेकिन मुझे कहा कि देखो ना अपने बहनोई को, कभी तुम्हें सलाम दुआ का मौका मिलेगा। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, मुझे अल्लाह ने इतनी अकल दी है। मेरे ससुराल से मेरा ससुर भी 8 भाई थे और मेरे बेटे भी माशाल्लाह 8 थे।
9واں تو چار پیدا ہی نہیں، پیدا ہوتے پہلے فوت ہو گیا تھا نا، تو 8 ہی گنے جاتے ہیں۔ لیکن بیٹا مجھے اللہ نے سمجھ دی تھی، میں ہر ایک کی آواز سے، ہر ایک میں آپ دروازے سے آتے ہیں نا، سیڑھیاں چڑھتے ہیں اور مجھے پاؤں کی چاو سے پتہ چل جاتا ہے یہ کون آیا، یہ علی آیا، بلال آیا، کون آیا، کیونکہ دیکھو نا اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ مجھے بار بار کہا، میں نے کہا میری نظر نہیں اٹھے گی، میرا دیور ابراہیم جب میری شادی ہوئی ہے ابھی اس کو تھوڑی تھوڑی داڑھی تھی، اور چھوٹا اسماعیل جو تھا نا یہ 3-4 سال کا تھا، میں نے کئی مرتبہ اس کو کپڑے پہنائے ہیں، یعنی نکر پہنا کے میں نے غسل دے دینا، کپڑے پہنانے، سر میں تیل لگانا، لیکن جب 10 سال کا ہوا تب میں نے پردہ کیا ہے، یہ نہیں دیکھا اس کی داڑھی آ جائے۔ لیکن اب تک کیسے کہا کہ بھابی پیار تے دے دیو، تو پھر میں ایسے کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ پھیر دوں گی۔ لیکن یہ ہے کہ مجھے آواز سے سب کی پہچان ہے، یقین جانو الحمدللہ، میں نے کہا مجھے آواز کی پہچان ہے، آج تک میری نظر اس پہ نہیں پڑی جس سے میں نے پردہ کیا۔ ہاں اچانک نظر کوئی ایسا مسئلہ گھر میں جو ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہیں ہو گئی ہو، لیکن بیٹا آنکھیں اس طرح دیکھنا ایک دوسرے کے سامنے، میں نے شادی حال میں دیکھا اپنے خاندان کے لوگ تھے کہ یہ نقاب کیا اور آنکھوں میں آنکھیں ملا کے دیور سے بات کر رہی ہیں، اور میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی جا رہی ہوں۔ یقین جانو آنکھیں نہیں اٹھتی پردے کے ساتھ بھی، آج کل کا معاملہ کرتے کرتے یہ ہو چکا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، آگے آگے چلتے ہیں ہوتا ہے کیا، کیونکہ غرق ہونے کے نزدیک ہم پہنچی ہوئی ہیں۔ تو میری بیٹیوں اس طرح ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے اگر ارادہ، اختیار، سمجھ اور عقل دی ہے، لیکن تمام ہمارے جسم کی صلاحیت 360 جوڑ جو بھی ہمارے عزم ہے، انشاءاللہ تعالی میرا عقیدہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلیں گے۔ جہاں کہیں اللہ سنے غلطی ہونے لگے اللہ ہمیں روک دینا اور ہم سے اللہ اچھے کام ہی کروانا، اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔